Hello students. So now in this video we are going to discuss solution of exercise 3.4 of chapter number 3 understanding quadrilaters for standard 8. So here first question, state whether the given statements are true or false. Done. So we have to check whether the given statements are true or false. So first statement, here we are given that all rectangles are square. All rectangles are square. So these are the rectangles and these are the square. Now we have to check the property of rectangle and square. So which are the basic requirement for any quadrilateral to be a square? Square होने के लिए क्या requirement है? Any quadrilateral is said to be a square if its four sides, है ना, four sides, all four sides and all four angles are equal. All four sides and all four angles are equal, that quadrilateral is said to be a square. In this rectangle, all four sides four angles are equal. Can we say all four sides are equal? So here all four sides are not equal. In rectangle all four sides are not equal, so rectangle cannot be defined as a square. तो सारे rectangle square नहीं होंगे. Clear? Because in rectangle only pair of opposite sides are equal. All four sides are not equal. For any quadrilateral to be a square, किसी भी quadrilateral को square बनने के लिए क्या requirement है? All four angles and all four sides must be equal. तो यहाँ पर सारी side equal नहीं है. So here we can say all rectangles are not a square. So all rectangles are square. So it's a false statement. This is false. Done. सारे rectangle square नहीं होंगे. Can we say all squares are rectangle? ये स्क्वायर को मैं रेक्टेंगल बोल सकता हूँ. रेक्टेंगल के लिए क्या कंडीशन है? ऑल एंगल्स मस्ट बी इक्वल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स मस्ट बी पैरेलल. सो हियर रेक्टेंगल के लिए सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है. सो कैन वी से ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल? सो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल. यस, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर. क्लियर? नाउ सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल rhombuses are parallelograms. All rhombuses are parallelogram. So this is one rhombus. Can we say this rhombus is parallelogram? Yes. Why? What is the basic requirement for any quadrilateral to be a parallelogram? Parallelogram के लिए क्या condition है? Only one condition. Both pair of opposite sides. Both pair of opposite sides must be parallel. So here in this rhombus, both pair of opposite sides are parallel. So here we can say all rhombuses are parallelogram. So this one is true. This statement is true. All rhombuses are parallelogram. Clear? उल्टा करके देखो तो, can we say all parallelograms are rhombus? है ना, ये एक पैरेललोग्राम है. Can we say all parallelograms are rhombus? कोई भी पैरेललोग्राम rhombus नहीं होगा, है ना. जो पैरेललोग्राम के अंदर all four sides, चारों साइड इक्वल होंगी, वो पैरेललोग्राम rhombus होगा. Clear? So all parallelograms are not rhombus, but all rhombuses are parallelograms. So this one is true. Is that clear? Chalo. Now all squares are rhombus and also rectangle. All squares. This is square. All squares are rhombus. Can we say all squares are rhombus? क्या ये square rhombus की सारी condition fulfill कर रहा है? तो रोम्बस की कंडीशन भी तो पता होनी चाहिए. एनी क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ रोम्बस इफ इट्स ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. यस, क्वालिफाइड हो गई. बिकॉज इन स्क्वायर और फोर साइड्स आर इक्वल एंड बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. सो कैन वी से यस, वी कैन से ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल. यहीं पर डिस्कस कर लिया. All squares are rectangle. Yes, because rectangle के लिए क्या condition है? All four angles must be equal and both pair of opposite sides are parallel. So all squares are rectangle. So here square is a rhombus as well as it's a rectangle. So this statement is true. This statement is true. Done. चलो next. All squares are not parallelogram. ये square है. All squares are not parallelogram. All squares are parallelogram because in a square
all four sides are equal, all four angles are equal and both pair of opposite sides are parallel. तो पैरेललोग्राम के लिए तो सिर्फ एक ही कंडीशन चाहिए, स्क्वायर जो सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना, चारों साइड इक्वल है, चारों एंगल इक्वल है, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, डन. सो हियर ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, बट ये बोल रहे हैं कि पैरेललोग्राम नहीं है, तो भाई ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है. ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, नॉट दिक्कत कर रहा है, सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ ऑल काइट्स आर रोम्बस, ऑल काइट्स आर रोम्बस, तो ये काइट ऐसे होती है, तो क्या ये काइट को हम रोम्बस बोल सकते हैं? ऑल काइट्स आर रोम्बस, क्या है रोम्बस है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर रोम्बस? ये रो रोम्बस, ऑल फोर साइड्स मस्ट बी इक्वल, बट इन केस ऑफ काइट ओनली पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल होती है और पैरेलल तो होती ही नहीं है. सो हियर we can say all kites are not rhombus, so it's a false statement. all kites are not rhombus, kite rhombus होती है नहीं, एक भी कोई भी kite ले लो वो rhombus नहीं होगी. now all rhombuses are kite, देखो ये अच्छा है. can we say all rhombus is a kite? तो kite के लिए क्या requirement है? adjacent sides equal होनी चाहिए. yes, adjacent sides are equal, so both pair of adjacent sides are equal. सो ऑल रोम्बसेस आर काइट, दिस इज ट्रू. काइट के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है ना, टू डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स मस्ट बी इक्वल. ये पेयर ले लो, ये पेयर ले लो, ये दोनों पेयर इक्वल होनी चाहिए, ये दोनों पेयर इक्वल होनी चाहिए, सो दैट क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ काइट. सो रोम्बस के लिए वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, सो ऑल रोम्बसेस आर काइट. सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ नेक्स्ट वन, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम, क्या हम पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम बोल सकते हैं? तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम किसे बोलते हैं. सो विच आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द क्वाड्रिलेटर टू बी अ ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम के लिए क्या कंडीशन है? वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड मस्ट बी पैरेलल, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड मस्ट बी पैरेलल, सो दैट क्वाड्रिलेटर इज सेड टू बी अ ट्रेपेजियम. पैरेललोग्राम में तो दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स है ना, दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो एक तो हो गई. सो दिस वन पैरेललोग्राम्स ट्रेपेजियम की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको क्वालिफाइड हो गया, कर रहा है. सो वी कैन से ऑल ट्रेपेजियम्स आर, सॉरी ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. लास्ट वन, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम. स्क्वायर ये रहा है ना, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, वन पेयर आ गई पैरेलल तो हो जाएगा ट्रेपेजियम. सो ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, सो दिस वन इज ट्रू. क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्वाड्रिलेटर एंड इट्स टाइप्स वाले जो वीडियो है वो पहले रिफ़र करना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन करो, एकदम ईजी है. क्लियर? सो पॉज दिस वीडियो एंड नोट इट डाउन. Okay students, now this question number 2. Now we have to identify the quadrilaters. Properties are given, we have to identify that quadrilaters. Different types of quadrilaters are there: parallelogram, rhombus, rectangle, square, trapezium and kite. So we have to identify the types of quadrilater by its property. So here we have to identify the quadrilater in which four sides of equal length are there. So total how many quadrilaters are there in which we are having equal sides? So our answer is, है ना, प्रॉपर्टी अच्छी तरह से याद है तो बोलेंगे आंसर इज रोम्बस. रोम्बस, रोम्बस इज द क्वाड्रिलेटर इन विच all four sides are equal, and square, square is the quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel, all four sides are equal and all four angles are equal. While in case of rhombus, both pair of opposite sides are equal and all four sides are equal. So in rhombus and square, all four sides are equal. Done. Now we have to identify the quadrilaterals in which four right angles are there. All four angles are equal and that are measure of 90 degree. So that quadrilaterals are rectangle, rectangle and square. Two quadrilaterals are there in which all four angles are right angles. चारों एंगल इक्वल होंगे और 90 डिग्री होंगे. डन. डायग्राम मैं आपको नहीं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, आपको याद है सब. नाउ नेक्स्ट वन, वी हैव टू एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल. हम स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं.
it is parallelogram, it is rhombus, and it is rectangle. That means square is the quadrilateral which qualifies all the requirement of quadrilateral, all the requirements of parallelogram, all the requirements of rhombus and all the requirements of rectangle. तो स्क्वायर को हम कुछ भी बोल सकते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल भी है, पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है. तो कैसे? सो हियर दिस इज आवर स्क्वायर, this is our square, all four sides are equal and all four angles are equal, done, and diagonal bisect each other at 90 degree and length of diagonals are equal. So first square is the quadrilateral, square is the quadrilateral, इसको हम quadrilateral बोलेंगे. तो इसमें quadrilateral की कौन सी कंडीशन फुलफिल हो गई? इट्स अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ फोर साइड्स. क्वाड्रिलेटरल के लिए तो इतना ही ज़रूरी है ना, बहुत गरीब है. चार साइड होनी चाहिए और क्लोज फिगर होनी चाहिए. सो इट्स अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ फोर साइड्स ले लो एंड क्लोज फिगर ले लो तो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा. पैरेलल है कि नहीं है, इक्वल साइड है कि नहीं है, एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है, कुछ उसको चाहिए नहीं, बस उसको सिर्फ चार साइड चाहिए और क्लोज फिगर चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल. तो ये स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल हो गया. यस. नाउ अब ये क्वाड्रिलेटरल थोड़ा डिमांड करेगा और अपनी कंडीशन और अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ाएगा, तो वो हो जाएगा पैरेललोग्राम. तो उसने एक और कंडीशन बढ़ा ली. क्या? क्लोज फिगर होनी चाहिए, फोर साइड होनी चाहिए, बट पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए. तो ये स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल जो था, तो क्या इसके अंदर बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है? यस. सो इट्स अ पैरेललोग्राम. सो हियर बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं? स्क्वायर की. उसके अंदर बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है और पैरेललोग्राम को बस उतना ही चाहिए. बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, हाँ, तो मैं पैरेललोग्राम हूँ. सो पैरेललोग्राम सेज दैट इन दिस स्क्वायर बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम को एंगल के साथ कुछ लेना देना नहीं है, साइड की लेंथ के साथ कुछ लेना देना नहीं है. उसको क्या चाहिए? सिर्फ बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स मस्ट बी पैरेलल. तो अपने आप को बोलेगा अच्छा मैं पैरेललोग्राम हूँ, संतुष्ट हो जाएगा. चलो रोम्बस, थर्ड वन रोम्बस. तो रोम्बस की कुछ थोड़ी ज़्यादा डिमांड होगी पैरेललोग्राम से. तो उसमें क्या होगा? पैरेललोग्राम बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल और रोम्बस बोलेगा मेरे लिए तो ऑल फोर साइड्स इक्वल होनी चाहिए. सो हियर इट्स अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ फोर साइड्स, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड मेजर ऑफ ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. तो ये रोम्बस हो गया. सो हियर all four sides are equal, है ना. रोम्बस का एंगल के मेजर के साथ कुछ लेना देना नहीं. उसको क्या रिक्वायरमेंट है? बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए और चारों साइड इक्वल होनी चाहिए. तो स्क्वायर के अंदर बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और चारों साइड इक्वल है, तो बस वो संतुष्ट हो गया, अच्छा मैं रोम्बस हूँ. तो स्क्वायर इज द रोम्बस. डन. फोर्थ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की भी कुछ अपनी डिमांड है, तो क्या बोलेगा? फॉर रेक्टेंगल बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, उसको साइड से कुछ लेना देना नहीं है, वो बोलेगा बस मुझे चारों एंगल इक्वल चाहिए. सो हियर बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल, सो इट्स अ रेक्टेंगल. सो all angles are equal and both pairs of opposite sides are equal. So rectangle हो जाएगा. तो देखो both pair of opposite sides are parallel and all four angles are equal, है ना, 90 डिग्री है. All four angles are right angles. So this is rectangle. Done. So here we can say square is the quadrilateral closed figure made up of four sides. It's a parallelogram
both pair of opposite sides are parallel, it's a rhombus, all four sides are equal, parallelogram with all four sides are equal, and it's a rectangle, parallelogram with all four angles are right angle. Clear students? So pause this video and note it down. Okay students, now question number 4. We have to identify the quadrilaters, or we have to give the name of quadrilaters whose diagonal properties of diagonals are given, and according to that we have to identify the quadrilater. So here diagonals bisect each other, so we have to give the name of quadrilater in which diagonals bisect each other. So diagonal bisect कहाँ पर कर रहे हैं? So diagonal bisect each other in parallelogram. They also bisect each other in rhombus. Also in rectangle. Diagonal also bisect each other in square. Done? तो चारों चार पैरेललोग्राम है, उसके अंदर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं. Done. Now diagonals are perpendicular bisector of each other. That means diagonal are 90 degree. Diagonals are bisect each other at 90 degree. तो कहाँ पर होता है? प्रॉपर्टी सबको याद है. So diagonal bisect each other at 90 degree in case of rhombus and square. Square and rhombus में diagonal bisect each other at 90 degree. और ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटर होते हैं वहाँ पर लेंथ ऑफ डायगोनल्स इक्वल होता है. लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. डन. तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो एक शॉर्टकट ट्री है, आपको ये याद रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी होने पर कैसे याद रखना है. सो फर्स्ट वी हैव टू रिमेंबर थ्री प्रॉपर्टीज. Which three properties of diagonal? That means they bisect each other. Diagonal bisect करेगा. Diagonal bisect each other at 90 degree पर होगा, and length of diagonal equal. That means diagonal of equal length. तो कैसे होगा? तो diagonal bisect कब करेगा, है ना? Diagonal bisect कब करेगा? 90 डिग्री कब होगा और लेंथ इक्वल कब होगी? तो बाइसेक्टिंग डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स मस्ट बी पैरेलल. बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स मस्ट बी पैरेलल. जो भी क्वाड्रिलेटर के अंदर बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगी वहाँ पर डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे. तो यहाँ पर चेक करो, क्वेश्चन क्या था? बाइसेक्ट ईच अदर. तो ऐसे कौन से टाइप है जहाँ पर बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है? पैरेललोग्राम में होती है, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. रोम्बस में भी होती है, रेक्टेंगल में भी होती है, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और स्क्वायर में भी होती है. दैट मीन्स ये चारों टाइप्स में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे. क्लियर? नाउ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दैट मीन्स बाइसेक्ट तो करेंगे, लेकिन बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री तो कब करेंगे? तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल. जो भी क्वाड्रिलेटर के अंदर ऑल फोर साइड्स चारों साइड इक्वल होंगी वो सारे क्वाड्रिलेटर के अंदर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री होगा. तो देखो ये चार में से ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटर है जिसके अंदर ऑल फोर साइड्स इक्वल होती है? रोम्बस एंड स्क्वायर. तो रोम्बस एंड स्क्वायर में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर तो करेंगे बट वो होगा 90 डिग्री. क्लियर? और लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल. तो डायगोनल की लेंथ इक्वल कब होगी? व्हेन ऑल एंगल्स आर इक्वल. किसी भी क्वाड्रिलेटर में ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल. दैट मीन्स ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स. तो वो क्वाड्रिलेटर के अंदर लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल होंगी. तो ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटर है जिसके अंदर ऑल फोर एंगल्स इक्वल होते हैं? सो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल. क्लियर? सो ये टेबल आपको याद रखना है, अच्छी तरह से बराबर याद रखना है.
इसका यूज़ करेंगे हम स्टैंडर्ड 9 में। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ पॉज दिस वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay students, now question number 5. Why rectangle is convex quadrilateral? रेक्टेंगल को हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलेंगे, है ना? इसके लिए कुछ दस्तावेज दो। प्रूफ रिक्वायर्ड। सो दिस इज स्क्वायर, सॉरी दिस इज वन रेक्टेंगल। सो व्हाई दिस रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स? तो इसके लिए हम प्रूफ देंगे। सो सबसे पहला प्रूफ, कॉन्वेक्स है ना, फॉर एनी क्वाड्रिलेटर टू बी ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, फर्स्ट कंडीशन इज all interior angles must be acute angle. So here all interior angles are acute angle. All interior angles are acute angle. कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर लेगा तो भी वो कॉन्वेक्स हो जाएगा, है ना? हम डिफरेंट कंडीशन देख रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन आपको ये चेक करना है कि सारे इंटीरियर एंगल एक्यूट एंगल है। यस, सो दिस इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। एक कंडीशन फुलफिल हो गई, आप इसको कॉन्वेक्स डिक्लेयर कर ही दो, डन। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है तो दूसरा चांस, दूसरा कोई टेस्ट करो। तो दूसरा टेस्ट होता है, लेट्स से इट्स डायगोनल। सो इफ यू ड्रॉ द डायगोनल, सो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और वी कैन से डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर। सो हियर डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर उसके डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। तो रेक्टेंगल के अंदर उसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये हो गया कॉन्वेक्स, डन। तीसरी भी एक कंडीशन होती है, तीसरा भी एक टेस्ट होता है जिससे आप चेक कर सकते हो कि वेदर दिस गिवन क्वाड्रिलेटर इज कॉन्वेक्स और नॉट। सो फॉर दैट वी हैव टू चेक, वी हैव टू टेक two different points on a quadrilateral और उसको हम ज्वाइन करेंगे। तो वो जो लाइन सेगमेंट मिलेगा, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग two different points of a rectangle will always lies in the interior part of this rectangle, done. So here line segment joining any 2 points of rectangle lies in interior of rectangle, डन। देखो कोई भी पॉइंट ले लो, ये ले लूँ या फिर ये ले लूँ, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो तो उसके इंटीरियर पार्ट में आएगा। So line segment joining any 2 points of a rectangle always lies in the interior part of the rectangle. तो ये रेक्टेंगल हमारा कॉन्वेक्स है, डन। सपोज डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते, लेकिन अगर आप डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो उसके इंटीरियर पार्ट में भी आ रहा है तो भी वो क्या होगा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर होगा। सो हियर दिस रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, डन। सो पॉज दिस वीडियो एंड स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, नोट इट डाउन। Okay students, last question. So triangle ABC is there, which is right angle at B, and we are given that point O is the midpoint of side opposite to this right angle. So here we have to prove that this O is at the equidistant from this point A, point B and point C. O is at the equidistance from this point A, point B and point C. That means prove that OA equal to OB equal to OC. This we have to prove, done. So here to prove this we will take on construction. So here extend this BO to this point D, extend BO to point D. इसको हम बोलेंगे प्रोड्यूस BO to D such a that, है ना, इसको प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस BO to D such a that OB equal to OD, such a that OB equal to OD, and join
this CD, join this CD and AD, and join CD and AD. Done. So here ABCD is the quadrilateral. तो यहाँ पर हमें मिलेगा ABCD is a quadrilateral. Done. So here we have produced this OD in a such a way that CD and AD are equal. CD and AD are equal, and these two types are equal. So here pair of both opposite sides are equal, and therefore we can say ABCD is a parallelogram. ABCD is the parallelogram because here BC is equal to AD and CD equal to AB. So it's a parallelogram. Now here angle ABC is right angle. Angle ABC is a right angle. So in parallelogram, measure of this one angle is 90 degree. So now ABCD is a rectangle. ABCD is the rectangle. Done. So what is the property of rectangle? Property of rectangle shows that diagonal bisect each other and length of diagonals are equal. So here length of diagonals are equal and they bisect each other. So length of diagonals are equal and they bisect each other. So AC equal to BD. AC equal to BD. Done. Therefore OD equal to OB. Length are equal, they bisect each other. So here we can say OA equal to OB equal to OC equal to OD. Done. So here OA equal to OB equal to OC. Hence we can say O is at the equidistant from the point A, B and C. Clear students? So pause this video and note it down.